everyone, welcome to Santosh Sir classes, and this video is going to be very special for you. Lot of students are waiting for this video to come, and this video is I will be sharing all the only the important questions for this June 2024 exam. Do watch this video till the end, and before we start this video, let me tell you the composition of the question paper that you will get in the exam. No doubt it is a 100 marks paper, and this 100 marks is divided into two parts, part A and part B. Now part A is comments and part B consists of long question answers and short notes. So this is the composition of the question paper, and this part is okay. This is I think you will be comfortable with this. लेकिन comment section, comments you will be giving I mean 4 questions मिलेंगे आपको comments के लिए, and carrying 5 marks each. एंड ये जो सेक्शन है कमेंट्स के लिए आपको क्लियर करना होगा कॉन्सेप्ट. अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, अगर राइटिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं है, देन यू कैन सफर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, एनी हाउ वी कैन मैनेज टू राइट दैट. लेकिन कमेंट्स दे आर अनएक्सपेक्टेड. कहीं से भी कोई भी अंदर से टॉपिक आपको मिल सकती है. सो get ready for this challenge, because IBO 01 is not an easy subject, because lot of concepts are here, and बहुत सारे laws हैं, बहुत सारे institutions हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर IBO 01. and let's see few important questions जो आपको करने चाहिए for this exam. And apart from that, everything depends on your time and your skill. Okay, fine. So these are few important questions that I have noted in these papers. So one by one I'm going to discuss all this with you. See the first one. This is IBO 01, International Business Environment. And as the name suggests, business environment, that means one question is a must from environment. Maybe micro environment or macro environment or political or social or cultural, कहीं से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, because it goes with the subject. Okay, तो जो पहला क्वेश्चन है, different types of environment, ये आपको प्रिपेयर करने हैं. एंड अगेन वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो. नाउ माइक्रो में माइक्रो इज अ स्मॉल एनवायरनमेंट वेयर द बिजनेस like can control this type of environments, like the business firm has influence over these type of environments, like customers, the workers, the suppliers, and the public, the competitors. So more or less the company has control over this type of environment. So they are micro in nature. And when we talk about macro environment, these are basically very complex environment beyond the control of the company. A company, it's very difficult to manage this type of environment. And इसके अंदर आपको मिलेंगे economic environment, political environment, then we have socio-cultural environment, we have technological environment, we have demographic environment. तो ऐसे बहुत सारे environment हैं in macro environment, and for your exam point of view, these 3 environment, इनको आपको अच्छे से करना है, economic और पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल.
नाउ लाइक हो सकता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए, हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाए, हो सकता है आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाए. सो दिस क्वेश्चन इज अ मस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी सी, रिकार्डियन थ्योरी. रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बहुत मज़ेदार थ्योरी है, बहुत ही पुरानी थ्योरी है. एंड डेविड रिकार्डो, जिसको हम लोग पहले भी ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत बार इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट. तो यहाँ पे जो आपको करना है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में. नाउ लेट मी ब्रीफ यू अप अबाउट दिस थ्योरी. नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सो व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअली देयर आर firms, there are countries which can, they are able to manufacture goods or services at a lower cost in comparison to other countries or other firms. तो उनको मिल गई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गई. मे बी वहाँ पे चीप लेबर है, रिसोर्सेस हैं, चीप रिसोर्सेस हैं, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत है. सो ड्यू टू दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जनरली द फर्म्स take over or try to take over the other firms. And according to David Ricardo, he says this international business is the result of nothing but this competitive advantage, because one country specializes, because this is in other terms result in specialization. जब कोई कंट्री के पास में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है जिसका वो फ़ायदा उठा सकता है. तो यानी फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, दैट मीन्स जो वर्क फोर्स है वो अच्छी है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, सारे टाइप के लेबर आपको इंडिया में मिल जाएंगे विच आर नॉट अवेलेबल इन वेस्टर्न कंट्रीज. सो दिस इज़ वेयर इंडिया स्पेशलाइजेस. यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी काफ़ी डिमांड रहती है. तो इस थ्योरी के आपको इसके बेसिकली हर थ्योरी में आपको एजम्पशंस जरूर इसके लर्न करने हैं, एंड उसके बाद में लिमिटेशंस, बिकॉज एवरी लॉ, एवरी थ्योरी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एजम्पशंस. कुछ एक एजम्पशंस होते हैं जिसके बेस पे वो थ्योरी बनती है या लॉ प्रपोज किए जाते हैं. तो ये दोनों चीज़ इसके साथ में अलॉन्ग विथ फ्यू डायग्राम्स. सो दिस इज ए मस्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न थ्योरी. ये भी आपको करनी है. मॉडर्न थ्योरी आपको बेसिकली शॉर्ट नोट्स में मिल सकती है, मे बी. एंड बेसिकली दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन few assumptions are there. It is this theory is the result of this imperfection. Now डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी थी वो बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल थ्योरी है, एंड दिस इज द मॉडर्न थ्योरी. एंड इसका मेन एजम्पशंस होता है कि एवरी कंट्री, एवरी फर्म इज इम्परफेक्ट. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. सो एंड दिस ड्यू टू दिस imperfection, this theory gives birth to modern theory. Okay, now imperfection, due to this imperfection, the country or the company, they try to put in more capital, technology, more skilled workforce, then प्रोफेशनल मैनेजमेंट. जो आज के टाइम में जो
प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज के जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे ऑलवेज लुक फॉर दिस good resources, financial resources, technology, professional management, well skilled labor, so like that. So this question you can get in the exams. Okay, let's move on to the next question. And the next question is a very common question, BOP, balance of payment. आई थिंक दिसंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था एंड लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है, मे बी कमेंट्स में, मे बी लॉन्ग क्वेश्चंस, मे बी शॉर्ट नोट्स। तो BOP आई मीन बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहाँ पे आपको करना है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, और ये दोनों अकाउंट के कंपोनेंट्स, ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन दोनों में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है कि BOP क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सो बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन ईयर, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ BOP। And sometimes this BOP इसके भी अगेन दो चांसेस बनते हैं, एक तो फेवरेबल, द अदर इज अनफेवरेबल। सो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री। फॉर ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, exports should be greater than imports, and in unfavorable, just reverse of this, imports exceeds exports. So now we can assume favorable, as the name implies, always every country, every economy, they always hope for favorable balance of payment, which is good for the economic health of a country. So अगर unfavorable balance of payment अगर होता है तो the government takes a lot of steps to correct this disequilibrium. So ये unfavorable balance of payment is also known as disequilibrium, और इसको करेक्ट करने के लिए इकोनॉमी बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है, लाइक डिवैल्यूएशन, लाइक रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, बहुत सारी ड्यूटीज़ लगा सकती है, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। सो दिस इज़ वन क्वेश्चन आई थिंक यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एट एनी कॉस्ट। ओके, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करना चाहिए टैरिफ वर्सेस नॉन टैरिफ बैरियर्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कंट्रीज बैरियर्स इंपोज करते हैं, टैरिफ बैरियर्स इन द सेंस इंपोर्ट ड्यूटीज या एक्सपोर्ट ड्यूटीज, जो कस्टम्स, जब वहाँ पे बहुत सारी ड्यूटीज, टैक्सेस पेमेंट करने पड़ते हैं। सो दिस टैक्सेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो बेसिकली जो डेवलप्ड नेशंस हैं लाइक अमेरिका, दे इम्पोज नॉन टैरिफ बैरियर्स। एक्चुअली ऐसा लगता नहीं है कि बैरियर्स, वो लोग बिकॉज दे बिलीव इन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, बट फिर भी दे इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ goods and services in their country. So they are non-tariff barriers, and these different types of non-tariff barriers ये आपको मिल सकता है एग्जाम्स में। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है इंपोर्ट कोटा। कोई भी कंट्री एक फिक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट ही कर सकती है। The country may demand for some special licenses for trading, I mean foreign trade. कुछ एक स्टैंडर्डाइजेशन इम्पोज कर सकती है
क्वालिटी कंट्रोल के मामले में स्टैंडर्डाइजेशन की यही टाइप के गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ एक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को लेके टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स तो ये भी मतलब इम्पोज करती है कंट्री, तो इसके ऊपर आपको लिखने आ सकता है डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। IBO 01। ओके, नेक्स्ट एक शॉर्ट नोट के लिए आप कर सकते हैं TOT। TOT का फुल फॉर्म हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड। When you look at the previous question papers, you will find this many times coming in the exam, terms of payment. And मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर IBO 01 स्टूडेंट्स। एंड एक सिंपल फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ पे लिख के इसको समझा सकते हैं, एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइडेड बाय import price into 100. So this is the simplest formula to calculate terms of trade. एकदम कॉमन लैंग्वेज में if I try to explain you this, if we can import goods at a cheaper cost, I mean the prices of imports is less than the prices of exports, so a country is in a position to import more goods at that price. Like when we go back, India was a colony of Britishers, and Britishers इस चीज़ को टर्म्स ऑफ ट्रेड को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया, कोई भी मान लो 10 रुपया में इंपोर्ट किया, I mean से क्लोथ्स, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए 10 रुपया में इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग किया और उसको बैक they sold it to India at 100 rupees. So that difference of 90 rupees is what is called terms of trade, जहाँ पे British was in a position to again purchase some more materials from India for 90 rupees at that cost. So this is called terms of trade. I mean अभी तो ऐसा कुछ है नहीं वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी this concept is very old and very attractive. So you can get on this. The next question, again a very common question, that is from globalization. Globalization से भी हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्स में होता ही होता है, and as we know, when you will try to define globalization, so it's very simple, like free movement of goods and services, people, technology and capital. So generally the aim of globalization is to make the whole world integrated. All the countries should be able to import and export the goods and services, like the people can move from one country to another for doing jobs, and there are simple without any restrictions, there are technology transfer and foreign direct investment, so like this. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ये है एक्चुअली, इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लोबलाइजेशन के आपको मिल सकते हैं एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस या फिर इसके फीचर्स या फिर इसके कंपोनेंट्स, तो ये सभी के इस क्वेश्चंस के लिए आप आंसर कर सकते हैं। इसके जो इफेक्ट्स हैं ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो पहला जो इफेक्ट है दैट इज मोर ट्रेड।
ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, like the main object of globalization is to make the free trade. So the countries can come out with more and more trade and employment. This is again a big advantage of globalization, to provide employment opportunities to as many people as possible. And then we have interdependence. Due to this globalization, the countries interdependence. Now the countries of the world, they are dependent on one another, because no country has specialization. सभी के पास में है, there are some drawbacks, loopholes, तो जिसकी वजह से उनको दूसरे पे डिपेंड रहना होता है. तो ड्यू टू this factor arises. Due to globalization, now people have a better standard of living. This is again a very important advantage of globalization. It results in liberalization. Liberalization means making the companies free from all the restrictions and duties, so that they can liberalize their trade with other nations. And this is only due to globalization that urbanization is possible. Urbanization, that means converting the villages into towns and towns into cities and cities into metro cities, and now another concept, smart cities. So this is all happening due to this. And due to globalization, we have cultural exchanges. This is also one important advantage. Like now we are wearing jeans, t-shirts. So all these are due to globalization, because the MNCs, the TNCs, they are all moving into India, and that results in the exchange of culture. And the last one is outsourcing. We know the services of BPOs, so they are all due to globalization. So this is one very important aspect of foreign trade. Okay, so let's move on to the next question. And ये सब कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर ही रहा है, एंड हो सकता है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ें आपको दिमाग में रहेगी, तो यू कैन ईजिली एक्सपैंड योर पॉइंट्स. ओके, वन मोर क्वेश्चन. मेथड्स ऑफ एंटरिंग into foreign markets. Now if you are a company, how can you enter the foreign market? How can you enter international trade? So there are various sources, there are various ways, there are different ways. जो पहला है, that is you directly do the export, direct export to foreign countries. Find a seller and you sell your goods to the foreign importer. The second one is franchising. Now this is nowadays getting very, very popular. We have seen McDonald's, we have seen a lot of other companies, foodstuffs companies, they are giving their franchises to other countries. So this is again a very good source of entering into the foreign market. The other one is joint venture, JV, one of the traditional technique. A company, the domestic country join hands with the foreign company, and they work together on a mission, on a project. So that is called joint venture, and they share the technology, the capital and the other resources among themselves. The next, the most important one, that is strategic alliances. ये बहुत ही important
मेथड है टू एंटर इनटू फॉरेन मार्केट. एंड लास्ट, FDI, foreign direct investment. A company, a government can directly invest in foreign countries, and that also a very good mode, but that requires more capital. The country or the firm should have enough capital to invest in foreign countries. And ये जितने भी sources हैं, इन सब के merits and demerits ये आपको learn करने हैं. Very important one. Long questions में आपको मिल सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एंड दिस इज ऑन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये दोनों आपको लर्न करने हैं. फ्यू एडवांटेजेस, एज वी नो दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन करेंसी आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री का. एंड कंट्री के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, दे कैन ऑल्सो डेवलप. द कंट्री विल बी एबल और इन ए पोजिशन टू एक्सपोर्ट मोर गुड्स एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज. तो बहुत फायदे हैं. So therefore every government tries to attract foreign direct investment because इसके इतने सारे फायदे हैं. But apart besides this advantages there are a few limitations also, because limitations में क्या हो गया कि maybe like the foreign investors they try to exploit the resources in the domestic country, and that may result in the destruction or the shutting down of the domestic countries, especially small scale industries and cottage industries. तो इन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. तो ये क्वेश्चन आपको करना है. इसके साथ साथ स्टेप्स टू अट्रैक्ट FDI. Government, this question may be with reference to the Indian government, कि what are the different steps taken by the government to attract, तो इसके बहुत सारे हैं. जैसे FDI पे 100% ड्यूटी फ्री हो गए, देयर आर लेस टैक्सेस कलेक्टेड ऑन दैट. एंड ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जहाँ पे फॉरेन इंडिविजुअल्स या फर्म्स दे कैन इन्वेस्ट. तो लाइक दिस. Okay, the next question that you should revise for the exam is MNC. Multinational companies, we know about this, Nestle, Colgate, Unilever, बहुत सारी companies हैं, multinational companies. And इसके आपको mainly कुछ एक चीज़ करनी है, जैसे features of multinational company and इनके advantages and disadvantages. Simple है, we know about this. And इसके फीचर्स थोड़े से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ. जैसे दे आर बेसिकली लार्ज साइज, दैट मीन्स उनके पास में जो कैपिटल होता है, जो रिसोर्सेस होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है. दे आर फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी वेरी साउंड. एंड दे हैव इंटरनेशनल प्रेजेंस. ये बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रेजेंस. They are present almost in all the countries of the world, like Colgate, like Nestle India. So like this. And technology का तो कोई जवाब ही नहीं है इनके पास. They use the latest technology, and the company itself has special departments for research and innovations. तो जहाँ पे वो लोग नई नई टेक्नोलॉजी always they try to discover. एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. बहुत ही वेल क्वालिफाइड पीपल, वेरी प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल पीपल, दे आर एट द टॉप पोजीशन ऑफ MNC. सो उनके पास पे काफ़ी दिमाग होता है, स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी फ्रेम करते हैं. एंड एक और चीज़ है इनके पास में फीचर्स के अंदर, दैट इज़ ओलिगोपोली. ओलिगोपोली का मतलब होता है बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, वेयर देर आर फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स.
in a market. We are talking about this is oligopoly market. So they create oligopoly market in a country. So they do not, they will always stop the new firms to enter into the market. तो एक तरीके से दादागिरी करते हैं एंड जो नए फर्म्स होते हैं, नई कंपनीज, इट्स वेरी हार्ड, वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर देम टू एंटर इनटू द मार्केट. सो लाइक दिस. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. समटाइम्स कंपनी ट्रांसफर इट्स टेक्नोलॉजी. There are various reasons for this transfer of technology and इस चैप्टर से भी आपको करना चाहिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. You can get it in short notes. You can also get it for 10 marks question. तो एंड यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वाई कंपनी डज दिस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वाई ए कंपनी सेल्स इट्स टेक्नोलॉजी टू अदर, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. तो इसके अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसके और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुछ एक पॉइंट्स आपको याद रखना है. दिस इज सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, आउटराइट सेल. एक कंपनी, रिसर्च कंपनी अगर है, ये अपनी टेक्नोलॉजी डायरेक्टली दूसरी कंपनी को सेल कर देती है एट अ फिक्स्ड प्राइस. सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. द सेकेंड वन इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग. सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. So that is called subcontracting. Maybe a company can hire technology from others and along with technology वहाँ के staff आएंगे इस कंपनी में काम करने के लिए. So like that. जो third form है that is franchising. Just now we discussed about this. So franchising is another way of transferring the technology from one company to another. And fourthly, very common, strategic alliances. Strategic alliances में the company joins hands with other companies and make an alliance. जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी अभी एनडीए की सरकार बनी है, तो इट वाज एन अलायंस बीजेपी प्लस अदर पार्टीज. सो लाइक दैट स्ट्रैटेजिक अलायंस भी कर सकती है कंपनी विथ अदर कंपनीज. सो दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसफर. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है आईपीआर के ऊपर, intellectual property rights. Basically, when we try to define intellectual property rights in simple words, basically the rights are given for the creation of the knowledge, the mind. Whenever a person or a company invents something new, so it always try to take the IPR. That's why वरना क्या होगा कि कॉपी हो जाएगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I have seen my study materials sold by other websites. You might have seen that in the Google, you might have seen that on the Telegram. So this is against the IPR. So basically this IPR is done for copyrights, like जो writings हैं, जो the thesis, the study materials, the books, तो उनके ऊपर कॉपीराइट्स मिलती है. दैट मीन्स द अदर पर्सन कैन नॉट मेक ए कॉपी ऑफ दैट और कैन नॉट सेल दैट. सो दैट इज कॉपीराइट्स. द अदर इज पैटेंट्स. पैटेंट्स जनरली गिवन टू द प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो उनको पैटेंट करवाते हैं सो दैट अदर कंपनीज डू नॉट स्टील अवे हिज प्रोडक्ट और नेम. Then we have trademark. You might have seen ISI mark, AG mark. तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड मार्क्स हैं, तो जहाँ पे वो कंपनी के सिंबल्स होते हैं, तो वो ट्रेड मार्क्स, पैटेंट्स, तो दैट इज सो बेसिकली दिस IPR इज गिवन फॉर ऑल दिस थिंग्स. तो ये आपको ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आपको WTO, आई मीन कुछ वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं
उसके अंदर डब्ल्यू के आपको याद रखने हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने YouTube पे इसको बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है WTO के बारे में। एंड इसके बेसिकली कुछ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। तो ये सारे WTO it regulates, it's a big institution, a big organization। तो ये कुछ हेल्प्स हैं। कुछ और हैं जैसे GATS। GATS का फुल फॉर्म हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो बेसिकली इसके भी फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, अगेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सर्विसेज, एज वी नो कि सर्विसेज वर्ल्ड में अभी बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। एंड इंडिया, आई थिंक इंडिया की 45% GDP कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर्स। तो दिस इंस्टीट्यूशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस। सो दिस जनरल एग्रीमेंट इट ट्राइज टू मतलब जो सर्विसेज हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किस तरीके से मूव करेगी, स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो इट लुक्स आफ्टर दैट। तो ये बेसिक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एंड एक और इंस्टीट्यूशन है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। नाउ जनरल एग्रीमेंट यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वन इज ट्रेड, द अदर इज टैरिफ। टैरिफ मीन्स टैक्सेस, ड्यूटीज। तो फ्री मूवमेंट, फ्री ट्रेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, एंड टैरिफ दैट मीन्स लोअर टैरिफ और विदाउट नोट टैरिफ्स। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है। एंड ये सारे इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वह टू मोर आर देयर, दैट IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनका एक ही मकसद होता है, दैट इज टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। ये इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा करें विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन कहीं से भी मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेट्स मूव ऑन टू few other questions and okay, एक और IBO 01 का वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है REG, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। मैं ब्रीफ कर देता हूँ। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स एज द नेम सजेस्ट, एज द वर्ड सजेस्ट, कि कुछ रीजन्स हैं। आई मीन वी कैन डिवाइड द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट कंटिनेंट्स लाइक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। तो रीजन्स में, डिफरेंट रीजन्स में जो पावरफुल नेशंस हैं या मे बी डेवलपिंग नेशंस, दे मेक अ ग्रुप। सो दैट इज कॉल्ड रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। नाउ इकोनॉमिक का मतलब हो गया कि बेसिकली their object is to develop foreign trade among themselves। like इंडिया के साथ में जो एशिया के जो छोटे छोटे नेशंस हैं, दे आर इन अ ग्रुप। ठीक है, जैसे सार्क, एशियन। तो ये एक दूसरे को ऑलवेज कोऑपरेट करते हैं एंड ऑलवेज दे ट्राई टू मूव देयर गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल एंड कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही आता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, एक और क्वेश्चन आपको करना चाहिए फॉर दिस, दैट इज रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, RDB। अगेन रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स एंड रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है जो रीजन्स हैं लाइक एशिया। तो एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करना। These are banks, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स। जो डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनको हेल्प करना फाइनेंशियली एंड टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी। तो इसके अंदर कुछ तीन इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हैं।
जैसे एक तो इंटर अमेरिकन बैंक है, देन एशियन डेवलपमेंट बैंक है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ द बैंक्स एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो ये 3 बैंक आप मेंशन कर सकते हैं और इसके बारे में आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। द मोर यू राइट द मोर यू गेट। एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज वेर एवर देयर इज इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पे बायर्स सेलर्स एक दूसरे को जानते नहीं है, लैंग्वेज समझते नहीं है, तो डिस्प्यूट्स हो ही सकते हैं, देयर आर चांसेस। तो मेथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स, काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है ये, मेथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स। एंड ये 3 मेथड आपको लर्न करने हैं। एक तो लिटिगेशन, द सेकेंड वन इज आर्बिट्रेशन एंड थर्ड वन कॉन्सिलिएशन, जिसको हम लोग इन अदर वर्ड्स वी कॉल्ड इट एज ADR, Alternative Dispute Resolution, the full form of ADR, Alternative Dispute Resolution। तो ये 3 मेथड है जहां पे अगर डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में तो वो सेटल कर सकते हैं। लिटिगेशन बेसिकली कोर्ट प्रोसेस, जहां पे द कंपनी और द इंपोर्टर एक्सपोर्टर दे मूव टू कोर्ट, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कोर्ट में अगर केस जाएगा तो ऑब्वियसली दैट इज एक्सपेंसिव एंड दैट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आर्बिट्रेशन ठीक है, एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं एंड एनी हाउ आउटसाइड द कोर्ट दे कैन सेटल द डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन इज अ गुड प्रोसेस। एंड वन थिंग मोर शुड आई टेल यू दैट आर्बिट्रेशन बेसिकली अ पार्ट ऑफ ADR। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो देयर आर ओनली 2 मेथड्स, वन इज लिटिगेशन, द अदर इज ADR। ADR पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, कॉन्सिलिएशन। एंड इन दिस अगेन एन आर्बिट्रेटर और मीडिएटर और ए कॉन्सिलिएटर इज अपॉइंटेड एंड वो दोनों पार्टी को बैठा के उनको म्यूचुअल करवाता है। तो इससे क्या होता है कि एक्सपेंसेस इज सेव्ड, टाइम इज सेव्ड, तो बहुत सारे फायदे हैं। ADR आपको बहुत अच्छे से करना है। एक और इंटरनेशनल संस्था है टू सेटल डिस्प्यूट, दैट इज ICC। सो ये दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेटअप बाय द UN, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स टू सेटल, बेसिकली दिस इज स्पेसिफिकली framed to settle the disputes, trade disputes. So this international council of this thing can also work for this. And कुछ और क्वेश्चंस, रोल ऑफ ICC हो गया। ट्रेड इन सर्विसेज, इसके एडवांटेजेस, ट्रेड इन सर्विसेज वी नो द वैल्यू ऑफ दिस सर्विसेज, सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करना दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज, बिकॉज दे आर इंटेंजिबल, वी कैनॉट सी देम, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इनके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो फायदा है ट्रेड इन सर्विसेज का दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत भयंकर प्रोवाइड करता है सर्विस सेक्टर, ट्रेड इन सर्विसेज। एंड इनफैक्ट जो इंडिया की GDP है दैट इज ऑलमोस्ट 45%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज कंट्रीब्यूटेड बाय सर्विसेज। सो एम्प्लॉयमेंट, GDP, नेशनल इनकम, तो बहुत हेल्प है। लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं ट्रेड इन सर्विसेज के, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मार्केट बिकॉज इट इज़ इंटेंजिबल। देन ये सर्विसेज में दोनों बोथ द पार्टीज शुड बी फिजिकली प्रेजेंट एंड once we use the service, that means we cannot use that service again we have to pay the fees and use the services। तो ऐसे बहुत सारे challenges हैं। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, unethical practices by MNCs। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत बार आता है।
वी हैव सीन मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज जो काफ़ी अनएथिकल, दैट इज़ अगेंस्ट द एथिक्स में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया, पोल्यूशन हो गया, एक्सप्लॉइटिंग unnecessary excessive resources, destroying the domestic environment socially, politically or culturally. तो ऐसे बहुत सारे practices हैं. We have seen in television that बहुत सारे ऐसे advertisements हैं जहाँ पे all false promises and representations are made by the companies. So these are all unethical. बहुत बड़ी नॉवल लिख सकते हैं इसके ऊपर. ओके कुछ और क्वेश्चंस आपको करने चाहिए. E-commerce, we are just coming towards the end of this video. E-commerce के advantages and disadvantages, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में करना है. As we know, online trading, online purchasing, selling, so that is e-commerce. इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, no doubt about that. And when we look at the previous 10 years in India, it has grown like anything. So all these Flipkart, Amazon, so they are playing a major role in that. And the last question, GTPN. This is a must for your exam. You might get this in the short note also. This is Global Trade Point Network, and basically the main object of this institution is to help to promote e-commerce. Okay, so that is GTPN. And all these informations, the marketing information, जैसे कि हम लोग गूगल पे या फिर याहू पे, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम लोग इमीडिएटली भी गेट द इंफॉर्मेशन. तो कंपनीज कैन ऑल्सो while selling or getting any type of information can refer to GTPN. So friends, these are few important questions जो आपको करके जाने चाहिए एग्जाम्स में. बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है एंड अगर पूरी सिलेबस को अगर हम लोग कवर करेंगे तो इट विल टेक a lot of videos. So anyway, you can, I am dead sure कि आपको यहाँ से questions मिल सकते हैं in the exams. So thank you very much for watching this video, and also share this video among your friends, and if you have not subscribed my channel, kindly subscribe. Thank you.